Good morning, students. This is Mr. PJ Titus from Salem classes. Students, today our discussing topic will be lesson number 6.2, The Mystery of a Girl. And this is for 7th class communicative English. So, if newly you are watching my video, I request you to subscribe this channel. At the same time, hit the bell icon also. Then, if you are newly watching, so just open the playlist where you can see class 7th communicative English. When you put on that or open that, so you can get all my previous video lecture. Means before 6.2. So then let's begin today's video lecture. As usually I will do the same, but in the next time I will summarize the chapter in English and in the Hindi also. But today I will read and translate. And before making this video, I uploaded a question answer. If you want to see that, you can also see. It was the story of a mystery girl. You know what is mystery? In Hindi we can say rahasya. Okay, something very doubtful and something that hidden. Okay, something that people are searching to find what is their reality. So that is called mystery. Okay, in Hindi, in one word we can say that rahasya. It is about November 15, 1950. The night was windy, dark and moonless. David Walter was driving on a remote country road. He stared through his windscreen at the scene lit up brightly by the headlights of his car. He could not believe what he saw. Okay? So, ये जो घटना कब का है? 15 नवंबर 1950 का है. तो रात का समय था, बिल्कुल अंधेरा था और उस समय मूनलेस नाइट जिसे कहते हैं, यानी उस समय मून का कोई नज़र ही नहीं आ रहा था. तभी डेविड वाल्टर क्या कर रहे थे, मतलब एक रिमोट कंट्री रोड में होते हुए वो जा रहे थे. तो एकदम से अपनी जो विंड स्क्रीन है, मतलब उनके जो सामने वाली जो स्क्रीन है ना, ग्लास है, उसी से वो देखते हैं ना. क्या देखते हैं कि एकदम से ऐसे एक घटना को वो देखते हैं और जो घटना देखने के बाद तो उसे वो विश्वास नहीं कर पाते हैं. अंधेरी रात के समय है, वो अकेले हैं, गाड़ी बड़ी तेज़ स्पीड से आ रही थी, है ना. तो ऐसे समय पर एक दृश्य को वो देखते हैं. तो क्या है दृश्य? ए गर्ल इन टॉर्न क्लोथ्स एंड ब्लीडिंग ले फेस डाउन बाय द ग्रास बर्ड्स. तो एक लड़की जो है ब्लीडिंग हालत में, फाड़े हुए कपड़े की हालत में, वो क्या करी हुई थी कि अपना मुंह केवल गिरी हुई वहाँ थी. Walter, an agricultural engineer in his 50s, jumped on his brakes and brought his car to sudden stop. तो ऐसे समय पर क्या होता है कि वाल्टर जैसे इस दृश्य को देख लेता है और तुरंत वो ब्रेक लगा लेता है. It was just before 7 p.m. on that windy November night, and he saw returning home after finishing his work in the countryside. यानी अपने कार्य को पूरा करके वो लगभग 7 बजे से पहले का जो समय है, नवंबर मंथ का समय है, तभी वो अपना कार्य गांव में पूरा करके अपने घर की तरफ जा रहे थे. What he saw in front of him was horrifying. Was it an accident or an unusual brutal murder?
जैसे वो देखते हैं, देखने के बाद वो हॉरिफाइंग हो जाते हैं, है ना। हॉरिफाइंग का मतलब बहुत एक मतलब चिंतित होना, डरावना होना, इस प्रकार के कंडीशन में आ जाते हैं और मन में सोचते हैं कि ये रियलिटी में कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर ये एक ब्रूटल मर्डर हुआ है, क्या हुआ है। He was trembling as he opened his car door. He ran quickly along the deserted road to where the girl lay. जैसे वो देखने के बाद कांपते हुए, डरते हुए क्या करते हैं, दरवाज़ा खोल देते हैं अपने विंडो का, अपनी कार का। खोलने के बाद वो तुरंत दौड़ते हुए वहाँ पर चले जाते हैं। He reached the spot and stopped bewildered, है ना। वहाँ पे पहुँच जाते हैं। There was nothing there. तो जैसे वो वहाँ पे पहुँचते हैं, पहुँचने के बाद देखते हैं कि वहाँ कुछ भी नहीं है। बड़े अजीब बात है, उससे पहले तो दिख रहा था कोई लड़की मरी पड़ी थी, अधमरा हालत में पड़ी थी, ब्लीडिंग हालत में थी, कपड़े फटे हुए थे। ऑल द थिंग्स ही हैड सीन दैट, है ना, द गर्ल वाज टॉर्न क्लॉथ एंड ब्लीडिंग, है ना, ब्लीडिंग। All of the sudden, when he reached there, he found nothing. That was something very amazement, है ना, that was something very astonished. He returned to his car and moved it so that its headlights illuminated the spot where the girl had laid. जैसे आप कार पे आए, कार पे आने के बाद उस हेडलाइट को जो है वो इल्यूमिनेट करते हैं, उस पर्टिकुलर जगह में उस हेडलाइट को क्या कर रहे हैं, घुमा रहे हैं। जैसे हम टर्च को घुमा करके देखते हैं, वैसे वो कर रहे हैं। There was nothing to be seen, not even a mark of blood, although Walter could swear he had seen blood dripping down the girl's arm on the road. तो ऐसे समय पर वो थोड़ा कांप जाते हैं। डेफिनेटली वो ऐसा सोच रहे हैं कि उन्होंने देखा था कि लड़की जो है खून से नतपत हालत में पड़ी थी, लेकिन अभी कुछ नहीं दिख रहा है ना। विथ ए टॉर्च ही thoroughly searched all around the place, but there was nothing anywhere. Finally, badly shaken and puzzled, he returned to his car and drove thoughtfully home. Torch लेते हैं, okay, he held his torchlight, then after spread here and there and trying to searching the death girl, but he couldn't found. Nothing was there, है ना। जैसे वो टर्च को मारते हैं और चारों ओर देखते हैं तो फाइनली कुछ भी नहीं दिखा, है ना, फाइनली कुछ भी नहीं दिखा। और कई सारे सवाल अपने दिमाग में लेते हुए अभी अपने घर की तरफ वो जा रहे हैं। वाल्टर कुड नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट, was it purely a fragment of his imagination? The more he thought about it, the more he was convinced it was not more imagination. At last he contacted to a local priest who was said to be an authority on the supernatural. तो ऐसा होता है, मन में वो सोचने लगा कि मैंने जो देखा है ना, ये सत्य है या फिर ये कोई मेरी मन की इमेजिनेशन है ना। लेकिन बाद में कंफर्म हो जाता है कि नहीं, ये मेरी कोई इमेजिनेशन नहीं है, ठीक है। तो तभी एकदम से उसको ऐसे एक किसी एक प्रिस्ट, लोकल प्रिस्ट है, प्रिस्ट बोले तो पुजारी होते हैं हमारे इंडियन के अनुसार, लेकिन ये जो प्रिस्ट के बारे में कहता है वो पादरी के बारे में कहा जा रहा है ना। इस पादरी के अंदर कोई सुपरनेचुरल पावर है, तो उसे वो मिलने के लिए चाह रहा है। टू हिज सरप्राइज, और मिल भी लेता है। टू हिज सरप्राइज द लोकल प्रिस्ट डिड नॉट अपीयर एस्टोनिश्ड व्हेन टोल्ड अबाउट द ब्लीडिंग गर्ल। ही न्यू ऑल अबाउट इट ऑलरेडी। द प्रिस्ट सेड दैट इट इज द previous 2 years, at least 4 meteorists had reported the same thing. यहाँ पे when he spoke all this thing to the priest couldn't astonished,
And when he has seen that he is not getting any astonished, and he began to think why the things is happening. तो ये जब कहता है कि इतनी सारी स्टोरी को उसको बता दिए, है ना, बताने के बाद ऐसा होता है कि एकदम से उसको लग रहा था कि भाई ये प्रीस्ट जो है चौंक जाएगा, थोड़ा मतलब एस्टोनिश्ड हो जाएगा, तजुब हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। तो क्योंकि इस प्रकार का घटना जो है वो 4 बार ऑलरेडी सुन चुके हैं, है ना, बिकॉज ही हियर्ड ऑलमोस्ट 4 टाइम सच स्टोरी and in different way, and that is why he is not being astonished. Each had seen the half-naked girl lying by the 2 police also, and a roadside at exactly the same spot. Once the matter had been reported to the police also, they had searched for the body, but nothing was found. However, the 4 motorists had no doubt about what they had seen. Not only David, but almost 4 persons have seen the girl always being half naked and bleeding and a torn cloth. So those who have one day somebody has seen. And after sin, he informed to the police station, and the 2 policemen came there and they searched the dead body, but they couldn't found. They couldn't found such a way. It is true that when they tried to search, they couldn't get the dead body, but it is true they have seen something. तो ये 4 जन जो है वो देख रहे हैं, है ना, ये 4 जन जो है वो देख रहे हैं, वो सत्य है। लेकिन जब वो डेड बॉडी को ढूंढने के लिए प्रयास करते हैं, उनमें से एक व्यक्ति जो है वो क्या करता है कि पुलिस को रिपोर्ट करता है। पुलिस को रिपोर्ट करने के बाद भी पुलिस आता है, ढूंढता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, ऐसा ही स्थिति वहाँ पर होता है। लेकिन बात तो सच है कि इन्होंने देखा है। दैट इज ट्रू, दे हैव सीन। तो अभी एक एक करके हम स्टोरी देखेंगे, कौन व्यक्ति किस तरह से देखा। तो हम एक व्यक्ति के बारे में देखते हैं जो 1949 की बात है। एंड दिस इज व्हाट इवान स्मिथ, ए होटेलियर, had told the local priest, I saw the girl in the twilight of a September evening in 1949. Her clothes were torn and she was lying in the grass by the road. There was blood on her back and her arms. I thought she had been murdered. I stopped the car and jumped out. But as I approached the body, it just seemed to fade away. है ना? तो यहाँ पर एक इवान स्मिथ नाम का एक व्यक्ति होता है, वो भी एक होटलियर है। ठीक है, एक दिन सितंबर का मंथ है, 1949 की बात है, और वो भी ऐसा ही देखता है कि एक हाफ मर्डर गर्ल जो है, जैसा डेविड ने देखा वैसा ये भी देखता है। लेकिन देखने के बाद जैसे वो वहाँ पे पहुँचता है, पहुँचने के बाद ऐसा लगता है कि वहाँ से ये जो दृश्य है गायब हो जाता है ना। आई वंडर्ड इफ आई शुड रिपोर्ट टू द पुलिस, बट देन देयर वाज रियली नथिंग टू रिपोर्ट। दे वुड थिंक आई वाज मैड और ड्रंक और जस्ट हैविंग देम ऑन। तो वो कहते हैं कि वो सोच रहे थे क्या करने के लिए, पुलिस को रिपोर्ट करने के लिए, लेकिन जब वहाँ पे कुछ था ही नहीं, है ही नहीं, ढूंढने के बावजूद भी मिला ही नहीं, तो किस बात के लिए वो करेंगे। पुलिस से इन्फॉर्म। द लोकल प्रीस्ट हैड हियर्ड ए सिमिलर स्टोरी फ्रॉम सेल्समैन हु सेड। अब देखो, डेविड से सुनने से पहले ऑलरेडी और कई लोगों से उन्होंने ये स्टोरी सुन चुके हैं। कौन? प्रीस्ट। तो अभी इवान तो बोल दिया, अभी एक दूसरा व्यक्ति है सेल्समैन, वो क्या कह रहे हैं? ही हैड सीन द पैसेंजर बॉडी इन द हेडलाइट्स ऑफ हिज कार
Instead of stopping, he drove frantically to the nearest houses and found the police. When they arrived, they found nothing, and the Monteris got a server taking off. ये व्यक्ति भी देखता है सेल्समैन, और जैसे वो देखता है, देखने के बाद वो अपना कार को स्टॉप नहीं करता, आगे चला जाता है। पास का कोई मतलब वो कोई घर पे चला जाता है और पुलिस को तुरंत फ़ोन करता है। पुलिस वहाँ पे पहुँच जाती है। पहुँचने के बाद तो वहाँ और कुछ भी नहीं दिखता है। ये भी एक बात है। After hearing all these stories from the local priest, David Walter went away quite confused. But now the local priest decided to find out the real fact. He rechecked the stories he had heard from all the drivers and found that the stories were all very identical. जैसे ये सारे बातें सुन लिया, डेविड तो चले गए, है ना, लेकिन जो लोकल प्रिस्ट है, पादरी साहब है, वो अभी सोचने पे मजबूर हो गए कि ऐसा तो आए दिन ये सभी प्रकार की बातें होती है, तो रियलिटी में क्या है स्टोरी, है ना, ऐसा क्या है, ये क्यों ऐसा हो रहा है, ये सोचने लगे और उसको फाइंड आउट करने लगे. ओके, डेविड वेंट आफ्टर हियरिंग ऑफ दिस थिंग, but the priest started to thinking about so what is the reality, why such things is happening. So he wanted to know the reality and he started to know something. So that is what he does here. None of mentalists knew each other and their report covered a period of over 2 years. जिन्होंने देखा है, ठीक है, जिन्होंने देखा है, ये सब कोई एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन ये 2 साल के अंदर ये घटना हो रहा है. Their description of a girl, the way she was laying and her position on the verge on the road were always the same. The priest came to the firm conclusion that it could not be a more coincidence. So he decided to make further inquiries. 4 जन ने जो बातें बताया, है ना, 4 जनों ने जो बातें बताया, और ये रियलिटी में एक बड़ी नर्वस सीट वाली बात थी. तो सभी वही बात ही कहते हैं, मतलब लड़की अधमरा होकर के पड़ी होती है और मुंह के बल गिरी होती है और ब्लीडिंग कंडीशन में होती है, फटे हुए कपड़े की कंडीशन में होती है, लेकिन जब जाते तो कोई देखते नहीं. तो 4 जन यदि अलग अलग मतलब जगह से थे जो एक दूसरे को नहीं जानते, लेकिन जब रिपोर्ट देते तो सेम चीज़ देते हैं. तो अभी प्रिस्ट जो है वो क्या करने लगे कि उसके बारे में एक जायजा लेना शुरू कर दिया. ही कंसल्टेड लोकल हिस्ट्रियन डॉक्टर आर्थर who gave the priest a very astonishing information. फिर उसके बाद डॉक्टर आर्थर के साथ उनके कांटेक्ट होता है प्रिस्ट का. तो प्रिस्ट उनको एक इतिहास मतलब बताता है, प्रिस्ट को ये इतिहास बताता है, इंफॉर्मेशन देता है. द हिस्ट्रिकल रिकॉर्ड विथ हिम मेंशन्ड दैट एग्जैक्टली 300 years earlier a girl had been robbed and stabbed and left to die and that very spot. तो इन्होंने अपने इतिहास को देखा. इतिहास को देखने के बाद डॉक्टर आर्थर फिर वो बताते हैं कि करीब 300 साल पहले एक लड़की को मतलब रॉब किया, लूटा गया, और लूटने के बाद उसको वहाँ पे छोड़ दिया और वहीं पे वो मर गई. ठीक है, उसके बाद से वो लड़की ऐसे काम करती है. लेटर 2 men were hanged for the crime, but the mystery of the bleeding girl who just faded away was still not solved. तो जिन्होंने किया था इस तरह के काम, उनको तो फांसी में चढ़ा दिया गया, लेकिन जो रहस्यपूर्ण घटना यहाँ पे हो रहा है, ये घटना जो है इसका कोई
समाधान नहीं रहा। तो इसीलिए क्या हुआ, अर्ली इन 1951 द लोकल प्रीस्ट अरेंज ए प्रेयर एट दैट वेरी स्पॉट फॉर द पीस ऑफ द गर्ल्स सोल एंड हैप्पीली द फैंटम ऑफ द ब्लीडिंग गर्ल हैड नॉट बीन सीन अगेन। उसके बाद जिस जगह पे ये घटना हो रहा है, ओके, उस जगह पे प्रीस्ट जाते हैं, एक प्रार्थना सभा के आयोजन करते हैं। जैसे प्रार्थना सभा का आयोजन हो जाता है, उस प्रार्थना करने का उद्देश्य यह था कि इस लड़की का आत्मा शांति हो, है ना, इस लड़की जो भटकती हालत में है उसका आत्मा शांति हो। सो जैसे वो प्रेयर पूरा हो जाता है, उसके बाद से क्या होता है कि इस लड़की का, और कहने का मतलब ये है कि इस लड़की का, और उसके बाद से फिर इस प्रकार का घटना और नहीं होता। So when he heard, the priest heard all the historical background, then he thought he will do something. And finally he arranged a prayer, okay, and he went there with his company, prayer company, and he offered a prayer there for the peace of the death girl. After offering the prayer, the incident what was earlier happening, that was fully stopped. That means the prayer was the effective, and because of that reason, that ghost girl couldn't appear after that day. So anyway, this is a mystery. Okay, I don't know it is a real or only story. It may be real because dates are mentioned over here, so it may be real. So I hope you have understood it. So students, if you know that I translate in Hindi because some of you they cannot understand fully English. That is why if anyone wants to fully English conversation, okay, then also I can make a whole chapter fully English conversation as a summary, either analyze. So if you need any help, so you can come with me. Thank you. May God bless you.